Hello parents and my dear students, welcome to online classes of Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 75680777458. Class 7, Subject GK, Chapter 3, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be open, then you may clear to your related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जब आपकी स्कूल क्लासेस ओपन होंगी तब आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 3. इंडिया अवर कंट्री, भारत हमारा देश. चैप्टर हेडिंग टेस्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के स्वाद. ये द heading of our chapter Taste of India explain itself that we are going to discuss about the different foods which are prepared or which are made all over the country in different states with different recipes. Okay, जो हमारी हेडिंग है उससे हमें क्लियरली पता चलता है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जगहों पे बनने वाले खाने और उनके बारे में जानकारी देने की बात है. So now let's move on to the chapter. We all love food. Different state and regions of India have their own unique recipes and style of cooking. Now here we are talking about different state and regions of India who are having their own individual recipe of making some particular food, maybe for some rituals or for which are famous in their states. हम सबको खाना बहुत अच्छा लगता है, हम सबको अलग अलग डिशेस टेस्ट करना या उन्हें बनाना सबको अच्छा लगता है. अब ऐसे ही भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर काफ़ी सारे ऐसे डिशेस हैं, ऐसी व्यंजन हैं जो अलग ही महत्व रखते हैं और उन स्टेट्स को उनके नाम से भी जाना जाता है, उन डिशेस की वजह से भी बहुत पॉपुलर माना जाता है. Let us travel around the country and taste some mouth-watering delicacies. अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ स्टेट्स की तरफ मूव करेंगे और हमारे डिशेस के बारे में जानेंगे और स्टेट्स के बारे में जानेंगे. ये स्टेट, नेम द स्टेट, हमें उन राज्यों के नाम बताने हैं ये पढ़ के, ये पॉइंट्स पढ़ के. फर्स्ट, let us first drop into this tiny seaside state and enjoy some sanas, type of idli, sourpotel, pork preparation in vinegar, and a sweet dish called babinika. The state name is Goa. Now here we are talking about a tiny seaside state which is Goa, where sanas, a type of idli, sourpotel, pork preparation in vinegar, and sweet dish called babinika are famous or which are mostly prepared in Goa. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो गोवा स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे सनास एक तरह की इडली होती है, वो सोरपोटेल जहाँ पे पॉर्क जो होता है उसे सिरके या विनेगर के साथ में प्रिपेयर किया जाता है, और एक वहाँ की मेन स्वीट डिश है जिसका नाम है बेबिनिका, जो कि बहुत ही फेमस है. नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ गॉड्स ओन टाउन. हियर वी रिलिश अ डिलीशियस मील ऑफ अपम एंड कोजियाराची, a coconut based chicken curry. After that we enjoy a generous helping of paisam, a dessert. Now in the next point we are discussing about Kerala. Okay, it is known as God's own city, भगवान की खुद की सिटी बोला जाता है केरला को. Here we are getting a delicious food named appam and कोजियाराची. यहाँ का जो फेमस फूड है वो है अपम और कोजियाराची. कोजियाराची इज़ अ चिकन मेड इन कोकोनट.
मेड विथ कोकोनट। कोकोनट यानी नारियल के साथ में बना हुआ चिकन होता है। एंड विद दिस सर्व यू और वी गेट अ डिलीशियस डेजर्ट नेम्ड पायसम। इसी के साथ में हमें एक स्वीट डिश मिलती है जो कि एक डेजर्ट है, उसका नाम है पायसम। ओके, सो द नेम इज केरला। The next is, from the south, let's travel to the land of Shivaji. Here, where we enjoy eating dishes like puran puli or roti stuffed with sweet fillings, junka, bakhri with thicha, and kolhapuri pandhara rasa. Now we are talking about the land of Shivaji. We all know that Shivaji was from Maharashtra, right? Here we are discussing about Maharashtra, and we enjoy a delicious food called Puran Poli. It is a kind of roti in which sweet fillings are filled. Okay. Next is Junka Bakri with Thincha. Junka Bakri is a vegetarian traditional dish of Maharashtra. Okay. And thicha is a kind of chutney. Next is kolhapuri pandhara rasa. It's a typical chicken dish of Maharashtra. यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं शिवाजी की सिटी या शिवाजी की ज़मीन के बारे में, जो कि है महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्य था, तो हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हम मेन डिशेस टेस्ट कर सकते हैं वो है पूरन पोली, जो कि एक रोटी होती है जिसके अंदर, रोटी के अंदर काफ़ी सारे मीठी चीज़ों से उसे बनाया जाता है। ये एक तरीके की स्वीट रोटी होती है या मीठी रोटी जिसे बोलते हैं, उस टाइप की। उसके साथ में हमें मिलता है जुनका बाकरी, जो कि एक वेजिटेरियन डिश होती है, ट्रेडिशनल वेजिटेरियन डिश होती है। उसके साथ में हमें मिलती है थिच्चा। थिच्चा एक चटनी होती है जिसमें मोस्टली मिर्ची या हरी मिर्ची या लाल मिर्ची का यूज़ किया जाता है। साथ ही में हमें मिलता है कोल्हापुरी पंधारा रासा। कोल्हापुरी पंधारा रासा जो है वो एक स्पाइसी चिकन डिश है, ओके, जो कि मोस्टली कोल्हापुर में फेमस है, जो कि महाराष्ट्र में ही है। सो द आंसर इज महाराष्ट्र। ओके, नाउ नेक्स्ट, next point is, it's Navratri and we are invited for a Sampauses meal of Vagarela bhat and khatta mug, followed by a sweet dish called Mohanthal. Here we are talking about Navratri, and we all know that Navratri is mostly celebrated and widely celebrated all over the India, but it is mainly originated with Gujarat. So in Gujarat, when Navratri is there, we are always invited, or everyone is inviting their family members or friends to their house for a meal, which is Vagrela Bhat. It is a dish of rice. Okay. Next, khatta mug. It is a green moong dal dish. And a sweet dish called Mohanthal. Mohanthal is a sweet dish of Gujarat made of besan, ghee, sugar and nuts. यहाँ जो बात हो रही है वो नवरात्रि की हो रही है, और नवरात्रि जो है मोस्टली पूरे इंडिया में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, बट जो इसका मेन ओरिजिन है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मनाई जाती है वो है गुजरात। सो वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरात एंड द आंसर इज़ गुजरात। हियर इन गुजरात में हम लोगों को जो एक स्पेशल डिशेस है वहाँ की, उनमें से कुछ ऐसी हैं। वागरेला भात, जो कि एक चावल की डिश होती है, चावल से बनी हुई डिश होती है।
और बहुत ही टेस्टी होती है। साथ ही में खट्टा मग, या आप इसे खट्टा मूंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हरे मूंग की जो दाल होती है उससे बनी हुई एक डिश होती है। साथ ही में इसके एक मिठाई होती है जिसको मोहन थाल बोला जाता है। मोहन थाल जो है वो गुजरात की एक फेमस मिठाई है, जो कि बेसन, घी, शक्कर और कुछ नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स के साथ में बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, ऑफ टू दिस नॉर्थ ईस्ट स्टेट वेयर वी ऑर्डर जट्टी लव टेंगा अंजा fish curry with roast ground and potato pitika. To satisfy our sweet tooth, we enjoy a bowl of Kamalar payesh. Now here we are talking about the northeastern state, that is Assam. Okay, where we enjoy Jatti Lau Tenga Anja. This is a fish curry, okay, mostly prepared in Assam, and with a potato pitika. Potato pitika is a mashed potato dish, and also with a sweet dish to enjoy is Kamalar payesh. Kamalar payesh is a sweet dish to enjoy the food. ओके, अब यहाँ जो बात हो रही है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मोस्ट जो स्टेट है वो है आसाम, जहाँ पे जट्टी लव तेंगा अंजा जो है एक फ़िश करी की डिश है, फ़िश की डिश है, मछली की, जो कि बहुत ही फेमस है। इसी के साथ में पोटैटो पितिका होता है, जो कि एक मैश पोटैटो जो होते हैं, उबले हुए जो आलू होते हैं, उसके साथ में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके इस डिश को बनाया जाता है। और साथ ही में इसके साथ जो मिठाई दी जाती है, जो वहाँ की मिठाई है, फेमस मिठाई है आसाम की, वो है कलामार पायश। ओके, सो द आंसर इज आसाम। दिस इज नॉर्थ इंडियन स्टेट is known for its tandoori murg, sarson da saag and makki di roti. Now here what we are talking, or for which state we are talking, the state which is famous for its some dishes, that is tandoori murg, it's a chicken dish, sarson da saag and makki di roti. We are very much familiar with sarson da saag and makki di roti. It is a state named as पंजाब। ओके, यहाँ जो हम स्टेट की बात कर रहे हैं वहाँ पे तंदूरी मुर्ग यानी तंदूरी चिकन जो हम बोलते हैं वो बहुत फेमस है। साथ ही में सरसों की सब्ज़ी और मक्की की रोटी बहुत फेमस है। और सरसों दा साग और मक्की दी रोटी, ये सुनते ही हमारे मुंह में जो और दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है पंजाब का। सो द आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट, बैक डाउन साउथ वी हैव मूली गटाए वाइनी सूप, अ डिश मेड ऑफ रेड lentils and black peppercorn. This is a dish or a soup made with black pepper and red lentils. Okay, next we get here is a chettinad chicken and paniyaram. This is a sweet idli. Paniyaram is a sweet idli. ओके, पानियारम जो है एक स्वीट इडली है। और चेतीनट चिकन जो है इज़ अ डिश विच इज़ ऑफ मैरिनेटेड चिकन विथ योगर्ट, कोकोनट एक्सेट्रा। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं साउथ के एक स्टेट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है तमिलनाडु। यहाँ पे एक सूप बहुत फेमस है जो कि है मूली गटायानी सूप, जो कि
काली मिर्च और रेड लेंटिल से बनता है। साथ ही में इसके एक चिकन डिश मिलती है जो कि मैरिनेटेड चिकन होता है, जिसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे दही, कोकोनट यानी नारियल वगैरह वगैरह। तो उस चिकन का नाम है चेटिनट चिकन। और साथ में एक स्वीट डिश होती है या स्वीट इडली टाइप की एक डिश होती है जिसका नाम है पानियारम। नाउ आफ्टर द स्टेट तमिलनाडु वी आर मूविंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, वेयर वी सिट फॉर अ मील ऑफ अमरूद की सब्जी, पंचमेला की दाल एंड लाल मास विद अ डिसेंट हेल्पिंग ऑफ गट्टो पुलाव। तमिलनाडु के बाद हम जो बात करने वाले हैं वो है राजस्थान स्टेट की, जहाँ पे अमरूद की सब्ज़ी बहुत फेमस है। पंचमेला की दाल, जिसमें पंचमेला की दाल वो होती है जिसमें 5 अलग अलग दालों से बनी हुई एक डिश होती है। और लाल मास एक्चुअली एक मटन का डिश होता है, ओके, जो कि बहुत ही तीखा होता है। और साथ ही में इसके साथ जो एक स्वीट डिश राजस्थान की मेन है वो है गधा पुलाव। ये एक चावल की डिश है जो मीठे चावल जिसे बोलते हैं। ओके, सो द आंसर इज राजस्थान। नाउ लेट्स नो विथ डायरेक्ट। केरी का पानी और ग्रीन मैंगो जूस इज़ अ पॉपुलर ड्रिंक इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। केरी का पानी यानी ग्रीन मैंगो जूस जो है वो नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में, जैसे कि राजस्थान में जयपुर, अजमेर, राजस्थान में उदयपुर, ऐसी जगहों पे बहुत फेमस है। सो दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3. You have to write the names of the state reading the dish's name. So thank you for attending the lecture. Have a nice day.